A very warm morning to all of you. Dear students of class 3rd, how are you everyone? Are you fit and fine? I hope all are feeling well. Students, so now as well as we are having the chapter 8, The Curious Baby Elephant. Okay, and yesterday we have completed the explanation of the chapter. So students, now let me give you the feedback. What about your explanation work? Have you understood the chapter? सबको समझ में आ गया अच्छे से? That what was the story of the chapter? I think all have understood. Okay, students. So now it's time to start our exercises of the chapter. So we have started now. Spelling bee. First of all, we will see spelling bee, and the page number I have today 19. Page number 19 there. तो चलिए start करते हैं. First of all, we will see there the spelling bee means we have some words. Practice spelling these words. We have some words here. Okay, we will do the spelling of these words. So let's start it first. Crocodile. Second, curious. Next, oozy. Wiggle. Haunches. Shoulder. Trugging. And again one more time you have trugging, four legs and elephant. Okay, so friends, see there whatever spelling or words are given there, these all are from the story The Curious Baby Elephant. Okay, so as well as crocodile, we have read about the crocodile, the baby elephant who was very curious to know about the crocodile's dinner. Okay, and one day what happened there, when he reached to the Limpopo river there, he met with a crocodile, and whatever things have happened with crocodile, you know well, I have explained as well as. ठीक है. And curious means always try to learn the things which are happening around us. Okay, means हमेशा कुछ जानने की और कुछ सीखने की इच्छा होना, हमेशा कोशिश करना कि हम कुछ सीखें. ठीक है ना. Next, oozy. Yes, oozy means full of very soft mud. ठीक है ना. And next आपका है, next meaning is this what? ये आपका wiggle है and haunches. This all the word meanings are given there in your book. Shoulder, trugging. Okay, trugging you know, walking heavily and moving. Four legs and elephant is about the curious baby elephant. ठीक है. तो यहाँ देखिए, आई वंडर, वी हैव सम वंडरफुल थिंग्स. एलिफेंट्स हैव अमेजिंग मेमोरीज. एलिफेंट की जो मेमोरी होती है, उनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है. हाउ कैन वी से दिस कुड बी ड्यू टू देयर लार्ज ब्रेन्स. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा ब्रेन होता है. ठीक है ना. विच कैन, क्या कर सकता है, विच कैन वेट ओवर 5 kg इन मास. जो कि क्या कर सकता है, ये 5 kg जो क्या है, वेट जो है वो कैरी कर सकता है. ठीक है. नाउ आफ्टर स्टूडेंट्स वी हैव, लेट्स ट्राई फर्स्ट एक्सरसाइज. सो लेट्स कम टू सी एंड लेट्स स्टार्ट टू फिल इट. रीड दी सेंटेंसेस देन टेक द राइट आंसर. क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस को रीड करना है, देन वॉट एवर राइट आंसर्स आर देयर, हम इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. स्टार्ट. In the beginning, the elephant's nose was. In the beginning means starting में क्या होता था, यहाँ पे जो beginning है, the baby elephant's nose was. कैसा था beginning में baby elephant का जो nose था, हम लोगों ने starting में read किया है ना. Nose as long as a boot. वो बिल्कुल long होता था जैसे एक बूट होता है. ठीक है. रीड किया था आप लोगों ने बुक में. ओके, मीन्स देयर वाज बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट. सो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, ओनली एज बिग एज अ बूट. एंड आफ्टर रिमेनिंग मीन्स मच बिगर देन अ बूट, एज बिग एज 10 बूट्स. ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे. क्लियर है. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. एवरीवन अवॉइडेड द बेबी एलिफेंट. जो लोग भी थे वो हमेशा बेबी एलिफेंट को अवॉइड करते थे. वाई? बिकॉज he was always asking the questions, so many questions, and because that was very curious baby elephant. So options we have, he was very handsome. सारे लोग उसको अवॉइड करते थे बेबी एलिफेंट को क्योंकि ही वॉज वेरी हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था. नो, रॉन्ग.
ही वॉज वेरी ट्रबलसम, क्योंकि वो बहुत ट्रबलसम था, सबको परेशान करता था और वो परेशानी में रहता था। दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, ही आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, कि वो बहुत सारे क्वेश्चन आस्क करता था। येस, व्हाट्स द फैक्ट देयर? फैक्टिंग क्या है? फैक्ट ये है कि बेबी एलिफेंट जो बहुत सारे क्वेश्चंस को आस्क करता था। दैट्स वाई एवरीवन वाज जस्ट अवॉइडिंग टू द बेबी एलिफेंट। ओके, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द बेबी एलिफेंट आस्क्ड द जिराफ। बेबी एलिफेंट ने जिराफ से पूछा वाई हिज आइज वर रेड, उसके आइज रेड क्यों थे? नो। वाई मेलन्स आर स्वीट, मेलन जो है वाटरमेलन वो स्वीट क्यों होते हैं? नो। व्हाट वाज द क्वेश्चन फॉर बेबी एलिफेंट टू द जिराफ? हाउ मेनी स्पॉट्स ही हैड। बेबी एलिफेंट ने जिराफ से क्वेश्चन किया था कि आपकी बॉडी पे जो स्पॉट्स हैं वो कितने होते थे, ठीक है, और कितने होते हैं। हाउ मेनी स्पॉट्स आर देयर ऑन द जिराफ्स बॉडी? सो आंसर विल बी दिस करेक्ट, ठीक है, वो आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है द बेबी एलिफेंट वॉज लेड टू द क्रोकोडाइल बाई। बेबी एलिफेंट जो है क्रोकोडाइल को उन्होंने लेड करने। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हाउ मेनी स्पॉट्स ही हैड, ठीक है, दिस क्वेश्चन आस्क बाय द बेबी एलिफेंट टू द जिराफ। सो इसमें हम टिक कर देंगे, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ वन, द बेबी एलिफेंट वॉज लेड टू द क्रोकोडाइल बाई। बेबी एलिफेंट जो है वो मीन्स बेबी एलिफेंट जो है क्रोकोडाइल के पास गई बाई यूजिंग हुज हेल्प, और बाई हुज हेल्प, किसकी हेल्प से? सो आंसर आपका है अदर एलिफेंट, मीन्स अदर एलिफेंट सेड टू द क्रोकोडाइल और सेड टू द लिम्पोपो रिवर। ओके, नो, दैट्स रॉन्ग। जिराफ, no any giraffe said to the baby elephant. The next one you have the kolo bird. Okay, means the kolo bird means said to the baby elephant to go to the Limpopo river and get information whatever the baby elephant wants about the crocodile. इसमें हम टिक कर देंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इट्स अ टुडेज एक्सरसाइज एंड आई होप यू ऑल हैव रिटन डाउन द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपके चैप्टर में ही है साइडेड में, तो आप लोग वर्ड मीनिंग को भी अपने नोटबुक में आप लोग बिल्कुल मस्तली राइट कर लेंगे, एकदम बिल्कुल राइट कर लेंगे, ठीक है। और ये MCQ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव एक्सरसाइज, so we will do the next day. I think there is a question answer, so which you will get on the board the next day. तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस को रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, so now next day again we are going to meet. So till then, now thank you, have a good day.